Good morning, everyone. Today, children, our topic will be combination of errors. Okay, the topic which you can see in front of you, we will study this topic today. Combination of errors. Combination of errors means whenever we do addition or subtraction. Whenever we do addition or subtraction, in those cases, in what way we will deal with the errors. This we are going to study under combination of errors. I hope you understood what we are going to study today. So now you suppose there are two quantities A and B and those two quantities we added. अब जब दो चीज़ों को आप जोड़ोगे तो कोई तीसरी नई चीज़ बनेगी. So suppose we got Z after adding A and B. Now in Z what we will do, we will find out error. So how can we find out error? Then you remember, in case of addition, the maximum value of error will be delta A plus delta B. It will be delta A plus delta B in case of addition, right? After this, like you did for addition, we will see what will come for subtraction. Okay, so for subtraction also, here only it is given. You can see maximum possible error. In case of addition, it is given delta A plus delta B. What is delta Z? Delta Z represents error in Z, or you can say absolute error. Correct. What is delta A? Absolute error in A. What is delta B? Absolute error in B. So absolute error in Z, it will be equal to error in A plus error in B. This we can write for addition, right? For subtraction, you can see here for difference, if we are subtracting one quantity from other, we get, suppose we got result Z. Then what will be the error in Z? Z में error कितना आएगा? तो Z में एरर आ जाएगा, मैक्सिमम एरर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? डेल्टा A प्लस डेल्टा B. अगेन फॉर एडिशन as well as subtraction, you will get same error. As delta Z is equal to delta A plus delta B. Like this you will get. Understood? So for addition and for subtraction we are getting same result. Now with the help of this question you can understand in more better way what is this numerical. Just look here. The temperature of two bodies measured by a thermometer R. भाई दो टेम्परेचर मेज़र किए गए हैं थर्मोमीटर के द्वारा, ठीक है. और जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है? T1 तो आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, राइट. और जो टेम्परेचर दूसरा है, जो दूसरा टेम्परेचर मेज़र किया है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. नाउ जो आपको वैल्यूज़ पहले दे रखी है प्लस माइनस से, ठीक है, ये जो प्लस माइनस से पहले वाली जो वैल्यू हुआ करती है ये ट्रू वैल्यू हुआ करती है बच्चों, ठीक है. तो ट्रू वैल्यू T1 के लिए क्या होगी? अब ट्रू वैल्यू को आप कैसे दिखाओगे? ट्रू वैल्यू को आप सिर्फ T1 लिख सकते हो. T1 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, T2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस. बट ये एग्जैक्ट T1 की वैल्यू नहीं है, ये क्या है? ये T1 T2 की वैल्यूज़ हैं विद एरर लिमिट्स. और ये जो है T1 T2 की वैल्यू है कौन सी वाली? ट्रू वैल्यूज़ जो हैं. अब आपको यहाँ क्या दे रखा है? जो भी प्लस माइनस के बाद वाला नंबर होता है आप लोगों का, आपको याद रखना है इट इज़ एरर इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. आपको ये मिला T1 के फॉर्मूले में, T1 की वैल्यू में. सो इट इज़ एब्सोल्यूट एरर इन T1 एंड ये है कितना? 0.5 डिग्री सेल्सियस. In the same way delta T2 also you can see 0.5 degree Celsius. Here it is. Okay, now let us see what are they asking. Calculate the temperature difference and the air therein. एक तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है. टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा?
सपोज करिए इनका जो डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का वो है T, कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 हो जाएगा, T1 माइनस T2। अगर अब ये तो मैंने आप लोगों को क्या करा, ये मैंने आप लोगों को जो वैल्यूज़ लिख करके दिखाई हैं ये जो ट्रू वैल्यू हैं और जो एरर्स उसमें हैं ये बताया था। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें एरर्स के साथ में ही करना है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 50 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, माइनस 20 प्लस माइनस 0.5। तो इसके बाद क्या होगा, 50 में से तो 20 घटा दिया जाएगा। और एरर के लिए क्या होगा, देखिए एरर्स के लिए हमने पढ़ा था, चाहे आप एडिशन के लिए करें या सब्ट्रैक्शन के लिए करें, you will get same type of error in the answer means in delta z। और वो क्या होगा, दोनों एरर्स को ऐड कर दीजिए। तो एक एरर ये है 0.5, दूसरा एरर ये है 0.5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 50 माइनस 20 कितना बचेगा, 30, और इसके बाद आ गया प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आप लोगों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। प्लस और माइनस के लिए तो हमने पढ़ लिया, लेट अस टॉक अबाउट प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट के केसेस में क्या होगा, प्रोडक्ट और क्वेश्चन मीन्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट और इन केस ऑफ डिवीजन व्हाट टाइप ऑफ एरर वी विल सी इफ़ देयर आर टू क्वांटिटीज सपोज ए एंड बी लाइक यू कैन सी हेयर। और अगर इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई क्वांटिटी मिली, जो नई क्वांटिटी है वो क्या है, वो है z। ठीक है, तो अगर अब z में हम एरर फाइंड करने चलें तो z में एरर इस तरीके से नहीं आएगा कि डेल्टा z कितना हो गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो गया। ठीक है, इस तरीके से एरर कहाँ पर आएगा, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें रिलेटिव एरर मिलता है। जैसे पहली क्वांटिटी क्या है, z, तो रिलेटिव एरर इन z इज़ इक्वल टू, ये क्या है a, तो रिलेटिव एरर इन a, फिर क्या है आपके पास b, तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव एरर इन b। इस तरीके से आपको यहाँ पर रिलेटिव एरर मिलता है प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट के केस में। और साथ ही साथ अगर आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करिए आप a को b से डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड करने के बाद आपको z मिलता है, तो z में कितना होगा एरर, वही होगा डेल्टा z अपॉन z इज़ इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। जितनी भी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही थी प्रोडक्ट में और डिवीज़न में, आप क्या कर दीजिए, उन सभी क्वांटिटीज़ का रिलेटिव एरर फाइंड कर लीजिए और वो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आएगा हम लोगों के दिमाग में कि भाई आपने बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एरर जो आ रहा है आंसर के अंदर वो आता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। फिर हमने ये पढ़ लिया कि भाई चाहे प्रोडक्ट हो या चाहे डिवीज़न हो, इनके केसेस में क्या होगा, जो एरर आएगा वो आएगा रिलेटिव एरर की फॉर्म में, है ना। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनमें रिलेटिव एरर निकाल करके हम उनको ऐड कर देंगे और रिलेटिव एरर इन z आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में जब हम कर रहे थे तो इस तरीके से हमारे पास रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसका आंसर ये है बच्चों, ये डेरिवेशन, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये डिराइव करके ही हमारे पास रिज़ल्ट आया करता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेल्टा z इज़ इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, है ना। तो ये अब डेरिवेशन करना है या नहीं करना है, तो इसका आंसर है डेरिवेशन तो करना है। अब करना कब है, करना तब है जब इसकी इम्पोर्टेंस इतनी हो, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है ना। तो अभी हमें क्या लेकर के चलना पड़ेगा, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टॉपिक्स हम अभी कवर करके चलेंगे। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमें रिज़ल्ट पता होना चाहिए, हमें रिज़ल्ट पता होना चाहिए डेरिवेशन का क्या आ रहा है। एंड द सेम रिज़ल्ट आई डिस्कस्ड विद यू इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न। ठीक है, ये सभी केसेस में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अभी आगे क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोगों को, तो ये सॉल्व करके देखते हैं हम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है, रेसिस्टेंस R इज़ इक्वल टू V अपॉन I।
यही आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। तो वोल्टेज इज गिवन 100 ± 5 एंड करंट इज गिवन 10 ± 2। फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। तो परसेंटेज एरर आर में कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई? वी नो दैट इफ़ यू फाउंड रिलेटिव एरर, देन रिलेटिव एरर यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट परसेंटेज एरर। ठीक बात है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, डिवीज़न वाला केस है। इफ़ वी हैव डिवीज़न here, then we can do this delta v upon v, delta I upon I. We have written maximum error in terms of relative error, है ना। maximum error in terms of relative error हमने लिख लिया कि R में कितना आ जाएगा, ठीक है। but we have to find out percentage error in R। तो अब क्या कर सकते हैं हम? let us multiply both sides by 100। so delta R upon R into 100, delta v upon v into 100 प्लस इन द सेम वे डेल्टा I upon I into 100। ये मल्टीप्लाई भी कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? लेट अस लुक दिस। यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। इट इज़ रिलेटिव एरर इनटू 100। वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर। सो दिस होल थिंग यू कैन से इट इज़ परसेंटेज एरर इन R and the same we have to find out, right? How to find out? Let us put values. Delta v first of all. Delta v you can see it is 5. So 5 upon v. The value of v is 100. So 100 into 100. Now plus delta I. Delta I is 0.2. 0.2 upon I. I means true value, that is 10. 10 into 100, right? Now after this what will you get? Wait a minute. What will we get after that? After that we will get याद है आप लोगों को क्या लिखा था हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर हाँ देखो ये लिखा था 100 by 100 we can cancel 100 and 100 into 0.2 it gives you 20 and we know that 10 will go 20 will go 2 times by 10. So here we have 2, here we have 5. So answer could be 7%. 7% will be our percentage error in R and the same answer you can see here. Okay, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे करते हैं. After this question number 2.10, this question you have to try. Okay, again they will ask you percentage error in case of series when the resistors are connected in series and connected in parallel. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है. ट्राई करिए, अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को. उसके बाद में लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. मोर क्वेश्चंस वी हैव. एग्जाम्पल नंबर 2.11 राइट. अभी ये है. अभी इससे पहले क्या है देखिए, यहाँ पर एक रूल पढ़ना पड़ेगा हमें. रूल किस चीज़ का है? रूल है एक्सपोनेंट टर्म्स का, है ना. यहाँ पर रूल क्या है? एक्सपोनेंट टर्म्स का है. जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक क्वांटिटी है A, उसकी पावर है P, B है उसकी पावर हो गई Q, उसको हमने डिवाइड कर दिया C से, C की पावर हो गई R, है ना. तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर मान लो सपोज करो ये Z के इक्वल है, देन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरर? नहीं, तो ये क्वेश्चन है अभी हम लोगों का. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम ये फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन. आप लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखिए, डेल्टा Z अपॉन Z मतलब रिलेटिव एरर इन Z, रिलेटिव एरर इन A, रिलेटिव एरर इन B, रिलेटिव एरर इन C. अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है. अगर A पर पावर आपने देखा कि कितनी है, P है, देन ये P से हमने क्या कर रखा है? A के रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर रखा है. दैट मीन्स व्हेन वी राइट एरर्स, जो पावर्स रहेंगी, है ना, जो हमारी पावर्स रहेंगी क्वांटिटीज़ की, वो एरर्स में किस में लिखी जाती हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी जाती हैं. उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है विद द एरर्स और आपके पास आंसर आ जाएगा एरर्स का. ठीक है, चलिए इसके बाद अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2.11. लेट अस सी. फाइंड रिलेटिव एरर इन Z इफ़ Z इज इक्वल्स टू दिस. तो बहुत ही आसान है. डेल्टा Z अपॉन Z रिलेटिव एरर आ गया. उसके बाद क्या आएगा? डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा B अपॉन B, डेल्टा C अपॉन C, डेल्टा D अपॉन D.
लेकिन क्योंकि पावर्स हैं तो ये पावर्स सारी की सारी आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए c की पावर कितनी है 1, इसलिए कोई नंबर नहीं आया यहाँ पर। एंड हेयर वी गॉट d/2। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था b⁻q c⁻r, भले से ही डिवाइड में है यहाँ पर ये c⁻r, लेकिन ये भी किस तरीके से लिखा जाएगा, प्लस करके ही लिखा जाएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.12। 2.12 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी चलिए मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा। इसमें क्या कहा गया है, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक्यूरेसी डिटरमाइन करनी है कि क्या होगी, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं हो पाएगा देन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू परफॉर्म दिस न्यूमेरिकल, राइट। और आफ्टर दिस न्यूमेरिकल व्हाट डू वी हैव, okay, we have here significant figures, so this will be our next topic, significant figures. Very important topic it is, which will cover in the next video. Till then you can keep revising and make your notes daily.